हमारा प्यारा पिता परमेश्वर, ಇದೊಂದು ಅರಿಮೆಯ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಕೊಡಿ. इस धन्य समय के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। நாங்கள் கடைசி நிமிடத்தில் இருப்பதில்லை. हम आखिर के वक्त तक पहुंच गए हैं நீர் எங்களை துரிதப்படுத்தி உமது பிரசன்னத்தை கொண்டு வருவதற்காக நன்றி. और हमें ये समझाकर तू अपनी हुजूरी में लेके आया है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। கர்த்தாவே, நாங்கள் உண்மைக்குரிய காரியங்களை குறித்து நாங்கள் நிறைவடையாமல் அதுக்காக காத்திருக்கிற வேலை. हमें दुनिया में सारी आशीष तो नहीं मिली है, हम उस इंतज़ार में तो हैं, அதே வேளையில் எங்களை பரலோகத்துடைய காரியத்தில் நீர் இப்போது எங்களை துரிதப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற தருணத்தை पर स्वर्ग के जो भी काम है उसको पूरा करने के लिए भी तू हमारे साथ बात कर रहा है। நாங்கள் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும், எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது என்று எங்களோடு பேசுவதற்காக நன்றி. जिस चीज़ को पहला जगह देना है, इस चीज़ को समझाने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் எடுங்கள், பின்பு இவைகள் எல்லாம் கூட்டி கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னீர். पहले सिर्फ हम खुदा की बादशाही को ढूंढें और उसको पाने में ही हमें सब कुछ पाने को मिलता है। எங்களுக்கு எது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் எங்களோடு இடைப்பட போவதற்காக. तो खुदा का बादशाही क्या है, इसको समझाने के लिए इस धन्य दिन को तूने दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। எங்கள் பலகீனத்தில் நீர் பலப்படுத்த போவதற்காக நன்றி. हमारी कमज़ोरी में तू हमें ताकत देगा, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। எங்கள் ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தருளும். हमारे रूहानी आंखों को खोल दे, எங்கள் ஆவிக்குரிய காதுகளை திறந்தருளும். हमारे रूहानी कानों को खोल दे, எங்கள் இருதய கதவுகளை திறந்தருளும். हमारे दिलों को खोल दे। எங்கள் மாமிசத்துடைய காரியங்கள் எங்களை நெருக்கி கொண்டிருப்பதினால் हमारी जिस्मानी सोच हमारे अंदर एक बोझ बन रही है, நாங்கள் சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் உம்மை நோக்கி பார்க்கும்படியாக पर शांति और तसल्ली के साथ तेरी तरफ देखने की ताकत दे। உமது பிரசன்னத்தினால் உம்மிடம் கிட்டி சேர இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு தந்த கிருபைக்காக நன்றி. तेरी हुजूरी में आकर तेरे पास आने का एक मौका मिला है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। நீர் பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம் जो நல்ல பிதா. तू बात कर खुदाया, हम सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से, ஆமென். आमीन, हालेलुया। ஹalleluya. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்குமா? क्या आप सब खुश हैं? ஹalleluya. மறுபடியும் சொல்றேன், இந்த தேவ தூதர்கள் இருக்காங்க. मैं और एक बार आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ पे दूत भी मौजूद हैं। ஹalleluya. हालेलुया। வரும்போது அந்த மாதிரி பைபிள் மாதிரி அவங்க வெள்ளை பேப்பர் எடுத்து வருவாங்க. जब मैं बाइबल लेके आया हूँ तो वो एक सफ़ेद पेपर लेके आए होंगे। ஹalleluya. நாம் இருதயத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் தேவையோ அவர்கள் இருதயத்தில் நம்ம பேசப்படுறதை அவர்கள் நோட் செய்து நம்மளுக்கு ஆஸ்வதிக்கிறார்கள். दिल में जो भी बातचीत आपकी चल रही है, जो भी सोच है, हर बात को पेपर में नोट करके उस हिसाब से आशीष मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? कितने लोग विश्वास करते हैं? கை தூக்காதவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. जिन्होंने भी हाथ नहीं उठाया, आप सबको कोई आशीष नहीं मिलेगी। ரமண பாய் ரமண். புரிஞ்சுதா? रमन भाई, जो मैं बोल रहा हूँ समझ आया? என்ன சொன்னது? तो मैंने क्या कहा? ஆமாம், தூதர்கள் நான் சொல்கிறது, நான் நினைக்கிறதெல்லாம் எழுதுறாங்களா? அந்த கை தூக்கலையே. पर हाथ नहीं उठाया। அது तो पेन அந்த 10 கணிகள் 5 கணிகள் தான் கை விட்டுருவாங்க. वो कह रहे हैं जैसे वो 10 औरत थे तो 5 रह गए थे, 5 अंदर चले गए, तो जो रह गए थे उसमें तो मत रह जाओ। அப்பறம் ஃப்ளோரன்ஸ் கூட தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கணும். फिर फ्लोरेंस, சிஸ்டர் ஃப்ளோரன்ஸ் கூட தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கணும். हाँ, फिर सिस्टर फ्लोरेंस के साथ झगड़ा करना पड़ेगा कि मैं रह गया, ஒன்னால தான் நம்ம பரலோகம் போவோம். कि मैं पेन ढूंढ रहा था तो मैं रह गया। நம்ம எதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம்? तो हम यहाँ क्यों आए हैं? எல்லாரையும் தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம பரலோகத்துக்கு போக வந்திருக்கோம். हैं? எல்லாரையும் தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம பரலோகத்துக்கு முந்தி கொண்டு सबको यहाँ पे छोड़ छाड़ के हमें पहले जाना है स्वर्ग में, ये मकसद है हमारा। உலகம் எங்களை இழுத்து கொண்டு தான் இருக்கு. क्योंकि दुनिया हमें खींच रही है। பேனா கொடு, பேப்பர் கொடுன்னு கேட்டு. हाँ, शायद मांगेंगे पेपर दे दो या पेन दे दो, பேப்பர் இங்க இருக்கு, बट पेपर दिल में है, பேனா இங்க இருக்கு. पेन भी दिल में है। ஹalleluya. हालेलुया। நம் காதுகள் திறக்கப்படுமானால் தேவ சத்தத்தை கேட்க. अगर रूहानी कान खुल जाएंगे तो खुदा की आवाज़ कान में पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். हमें विश्वास रखना है कि हमारे बीच में पाखरू है। ஹalleluya. हालेलुया। நாட்களில் சிறு சிறு காரியங்களை நாம் சொல்லிவிட்டு பரிசுத்தாவியினுடைய காரியங்களுக்கு கடந்து போக போகிறோம். आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे, फिर हम खास करके पाखरू के बारे में देखेंगे। ஆமென். யோவான் 14வது அதிகாரம் यूहन्ना 14 ஒன்றாவது அதிகாரம் 1வது வசனம் 14 उनलेरदेल्ला मेवा 1 2 மட்டும். 1 और 2, 14 का 1 और 2, यूहन्ना 14 उसका 1 और 2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
கர்த்தராகிய ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் பேசுகிற காரியம் पाखरू इस बात का जिक्र कर रहा है உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக कि आप व्याकुल ना हो, தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் परमेश्वर पर विश्वास रखें, என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் मुझ पर भी विश्वास रखें। அவர் சொல்கிறது இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக तो इसमें यीशु कहता है कि मन में व्याकुल ना हो। எத்தனை பேர் இருதயம் நம்ம இப்போது கலங்கி இருக்கிறது कितने लोग हमारे बीच में हैं जिनके दिल में कुछ तो है जो बोझ है। எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க तो बाकी सब ठीक है? कुछ भाई बहनों ने हाथ उठाया है, बाकी सब ठीक हो, दिल में कोई बोझ नहीं है। அப்ப கர்த்தர் ரொம்ப ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார் तो खुदा ने आपको बहुत आशीष दी है। ஆமென் आमीन। நான் சொல்வது இருதயம் இங்க சந்தோஷத்தை இல்ல இங்க இருதயத்தை சொல்றேன் मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, मैं अकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल का बात कर रहा हूँ। दिल में व्याकुल, இருதயம் என்பது தேவனிடத்தில் கிட்டி சேர்கிற ஒரு காரியம் क्योंकि खुदा चाहता है कि दिल में हम उसके नजदीक आए। हालेलुया। தேவன் இருதயத்தில் தான் தேவன் நம்மோடு பேசுகிறாரா இருக்கிறார் क्योंकि ये हमारे दिल है जहाँ पर आकर खुदा हमारे साथ बात करता है। நாம் அதிகமாக சிந்தையை யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் क्योंकि हम ज्यादातर सोचते हैं, ஆனால் தேவன் சொல்றது இருதயத்தில் பேசும் पर खुदा कहता है नहीं, दिल में आके बात करूंगा। அதனால தான் இயேசு சொல்கிறார் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் इसलिए यीशु कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ஏனென்றால் பிதாவின் வாசஸ்தலத்தில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் இருக்கு क्योंकि पिता के घर पे ना रहने के लिए बहुत जगह है। ஹalleluya हालेलुया। பிரான்ஸ்ல இல்ல फ्रांस में नहीं है, பரலோகத்தில் स्वर्ग में ஆமென் बहुत है। ஹalleluya हालेलुया। இங்க அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா அங்க குடிசை கூட கிடைக்காது अगर यहाँ पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो वहाँ पे झोपड़ी भी नहीं मिलेगी। ஏனென்றால் இங்க இருதயம் இங்க நம்ம தேடும்போது இருதயம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் क्योंकि अगर आप दुनिया में ढूंढते रहोगे तो दिल में आपको कष्ट होगा உலக காரியங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு நம்ம கவலைப்பட்டு और கொண்டிருக்கோம் दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए हम दुख उठाएंगे। ஆனால் இவைகள் தேவைதான் நமக்கு हाँ, ये भी ज़रूरत है இவைகள் எல்லாம் நம்ம ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட காரியங்கள் தான் நமக்கு और इसमें भी आशीष देने के लिए खुदा है, ஆனால் அவைகளுக்கு முன்பாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடும்போது இவைகள் எல்லாம் கூட கூட்டி पर கொடுக்கப்படும் इन सब चीज़ों के आगे अगर खुदा की बादशाही को हम रखेंगे तो ये सब उसके पीछे पीछे हमें मिलेगा। ஹalleluya हालेलुया। ஆமென் आमीन। அதுக்கு தான் இயேசு சொன்ன ஒரு பெரிய ஒரு வார்த்தை என்னன்னா इसलिए यीशु ने कहा है, நானே வழியும் 6 நானே வழியும் நானே சத்தியமும் நானே ஜீவனமா இருக்கிறேன் यीशु ने उससे कहा 6 जी आप 6 पढ़े। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। நானே வழியும் நானே சத்தியமும் நானே ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என் இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவிடத்தில் வரான் मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ और बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। எங்க பரலோகத்தில் தேவனுடைய ஸ்தலத்துக்கு कहाँ पहुँचना है? स्वर्ग में पहुँचना है, पिता के पास। ஹalleluya हालेलुया। அதை சொல்லிவிட்டு 7வது வசனத்தை வாசிங்க और उसमें आप 7 पढ़े। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। அறிந்திருக்கிறதானால் यदि तुम मुझे जानते हो, இயேசுவை அறிந்திருந்தோமானால் अगर हम यीशु को पहचानते हैं பிதாவையும் அறிந்திருப்போம் तो पिता परमेश्वर को भी पहचानते हैं। இது முதல் நீங்கள் அவரை அறிந்தும் கண்டும் இருக்கிறீர்கள் और इसके आगे हम कह सकते हैं हम उनसे मिले हैं, हम उनको पहचानते हैं। हालेलुया। எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கிறோம் कितने लोग वाकई में कहते हो कि हम जानते हैं परमेश्वर को? பரலோகத்தை பற்றி காரியம் ஆமென் स्वर्ग के बारे में ज़्यादातर आपकी भोज है। ஹalleluya हालेलुया। அதே இயேசு சொன்ன இன்னொரு வார்த்தை யோவான் 11வது அதிகாரம் और इसी यूहन्ना 11 में देखेंगे यीशु ने क्या कहा है। ரெண்டு முக்கியமான வார்த்தை ये दोनों वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 11வது அதிகாரம் यूहन्ना 11 25 26 इसका 25 और 26 25 एंड 26 11 25। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है?
हालेलुया, हालेलुया। பாருங்கள், அங்கு சொல்லப்படும் நானே வழியும் நானே ஜீவனும் நானே சத்தியமா இருக்கிறேன். वहाँ हमने पढ़ा है कि मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। இங்கே சொல்கிறார், முன்னர் இடத்துல சொல்றார், நானே உயிர்த்தெழுதலும் நானே ஜீவனுமா இருக்கிறேன். यहाँ कहा गया है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। என்னை விசுவாசித்தால் மரிக்காதே இருப்பீர்கள். और जो भी मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी उसकी मौत नहीं होगी। அங்கு சொல்கிறார், என்னை அறிந்திருக்கிறானால் பிதாவையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். वहाँ यीशु कहता है कि अगर आप मुझे पहचानते हो तो पिता को भी पहचानते हो। हालेलुया, हालेलुया। இயேசுவை அறிந்திருந்தால் நம் பரலோகத்தையும் அறிந்திருப்போம். तो अगर वाकई में हम यीशु को पहचानते हैं तो स्वर्ग को भी पहचानते हैं। ஆமென். हालेलुया। நாம் அறிந்திருக்கிறோமா? क्या हम पहचानते हैं? ஆமென். ஏனென்றால் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய உறவு. क्योंकि एक रूहानी रिश्ता है ये। ஆமென். हालेलुया। பாருங்க, கணவன் இருக்கார், மனைவி இருக்கார். உதாரணத்துக்கு நான், என்னுடைய கணவன், என் மனைவி இருக்கிறார். ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि हम पति पत्नी का उदाहरण लेंगे। मैं हूँ, मेरी पत्नी है। என்னை திருமணத்துக்கு முன்பாக அவர்கள் யாரோ நான் யாரோ. मेरी शादी से पहले वो कोई और थी, मैं कोई और था। திருமணத்துக்கு பிறகு அவர்கள் குடும்பம் எல்லாம் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு சொந்தமாக மாறி. पर शादी होने के बाद देखा गया तो मेरी पत्नी के सारे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार बन गए என்னுடைய குடும்பம் எல்லாம் அவர்கள் குடும்பமும் சொந்தம். और मेरा परिवार उनके रिश्तेदार बन गए। அது எப்படி நடக்கிறது? तो ये रिश्ता कैसे बनी? ஒரு பந்தம், एक रिश्ता तय होने की वजह ஒரு से, உறவு. एक रिश्ता शुरू हुई इस वजह से। அப்ப கணவன் மனைவி என்ற உறவு வரும்போது பெரிய குடும்பங்கள் இந்த குடும்பத்தோட ஐக்கியமாகிறது. तो अगर एक पति पत्नी एक होते हैं तो दो परिवार एक होती है, இந்த குடும்பம் அந்த குடும்பத்தோட ஐக்கியமாகிறது. एक परिवार दूसरे परिवार के साथ मिल जाती है। அப்ப உதாரணத்துக்கு तो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। கணவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை, பொருளாதாரத்தில் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. अगर पति को कोई पैसों की जरूरत पड़ी तो மாமியார் வீட்டில் அந்த நிறைய பணம் பொருளாதாரம் இருக்கிறது. तो शायद पत्नी के घर पे पैसे हो उनके घर आने में, அவருக்கு தேவைப்படுகிறது. पर इनको पैसों की ज़रूरत है। போய் உங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்டுட்டு வாங்கிட்டு வாங்கினா अगर उन्होंने अपना पत्नी भेज दिया कि जाओ अपने पापा से मांग कर लेके आओ, வாங்கிட்டு வருவாங்களா இல்லையா? क्या वो मांग के आएंगी कि नहीं? हालेलुया। ஏன்? क्यों लेके आएंगी? அவங்க அப்பா எப்பயோ சம்பாதிச்ச ஒரு காரியம். उनके पापा ने कब का कमाया होगा उसको, ஒண்ணு திருமணம் பண்ணி கொடுத்தார். और शादी भी करके भेज दिया। அந்த திருமணத்துக்கும் இதுக்கும் அவர் பொருளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. और शादी करने के बाद देखा गया तो उन जायदादों का और इनका कोई लेना देना नहीं है, இவருக்கு தேவைப்படுகிறது. पर इनको जरूरत पड़ी। உரிமையாக தன் மனைவியிடத்தில் போய் உன் வீட்டில் இருக்கிறதை எடுத்துக்கொண்டு வா. हक जताकर कहते हैं अपनी पत्नी को कि घर जा और अगर मुमकिन है तो लेके आ। ஹalleluya. हालेलुया। கொண்டு வரவெல்லாம் பொண்ணு அங்க இருக்காது, மாப்பிள்ளை கூட இருக்காது. கொண்டு வரலன்னா புருஷன் கூட நிக்க முடியாது. अगर वो जाके नहीं लेके आ सकती तो रह नहीं सकती ना पति के साथ। உண்டா இல்லையா? क्या ऐसा ही है? இந்தியாவில் வரதட்சணை சொல்றோம் இல்லையா? क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि दहेज की बात की जाती है, ஏன்னா அப்பாவும் கொடுத்தாருப்பா, என் மகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். क्योंकि पापा भी चाहते हैं कि बेटी की जिंदगी ठीक रहे तो वो देते रहेंगे। உலக காரியங்களில் இப்படி இருக்கும்போது अगर दुनिया में ऐसी है நம்முடைய கணவர் யார்? तो हमारा हस्बैंड, ஆவிக்குரிய கணவர், husband. हमारा रूहानी तौर पर देखा गया तो हमारा दुल्हा कौन है? யார் நம்முடைய husband? कौन है हमारा दुल्हा? ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேருக்கு இயேசு கணவரா இருக்கிறார்? कितने लोग कह सकते हैं वाकई में यीशु मेरा दुल्हा है? கேட்க போகும்போது एक एक करके पूछूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। மனைவி கணவன் லேட்டா வந்தால், கொஞ்ச நேரம் லேட்டா வந்தால், ஒரு 2 மணி நேரம் லேட்டா வந்தால் எத்தனை மனைவிகளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது? अगर मान ले कि आपके पति को घर लौटने में देर हो गई तो कितने वाइफ यहाँ पे हैं, मौजूद हैं तो कह सकते हैं कि आप कॉल करके पूछते नहीं कि आप देर से क्यों आ रहे हो? ऐसे कोई वाइफ नहीं है जो फ़ोन करके पूछती हैं? सोनिया को कष्टமே இல்லை. क्वेश्चन यही है। லேட்டோ இல்லையோ கேட்டுட்டே இருப்பாங்களா? ஓ, அவங்க ட்ராக் பண்ணுவாங்களாம். இது ரொம்ப ஆபத்தான ஆவிக்குரிய மண்டலம். वो कहते हैं ये तो खतरनाक चीज़ है। இது அன்பு கிடையாது, இது சிஐடி வேலை. ये प्यार नहीं है, ये सीआईडी वाला काम है। இல்லை வேலையில் ஃபோன் எடுக்க முடியாது அதனாலே. அதனால ட்ராக்ஸ் பார்க்கறது. அவர் வேலையில் எங்க இருக்கிறாரு, இது ஒரு மறைமுகமான ஏமாற்றக்காரி. ये कहते हैं
ஓகே உங்க நம்பர் என்ன? ரமணா பாவம். कहते हैं बेचारा रमन। ரமணா பாவம். ஹalleluya. கூடுமானால் எல்லாரும் ரமணாக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. तो कहते हैं अगर मुमकिन है तो सब मिलके रमन के लिए दुआ करें। ஹalleluya. எங்கேயாச்சும் போய் தப்பு பண்ணோன்னா ஃபோனை வச்சுட்டு போயிட்டு வரோம்। இது பரலோகத்துடைய காரியம் இல்ல, வேற ஒரு காரியம், வேற ஒரு अभी हम रूहानी बात कर रहे हैं, ये रूहानी बात नहीं है, रहने दे। हालेलुया। பாருங்க, கணவர் கொஞ்சம் லேட்டா வருகிறார் என்பதும் மனைவிக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் இல்லையா, ஒரு கலக்கம் வரும், ஏன் வரவில்லை? अगर पति के घर लौटने में देर हो रही है तो चिंता तो होती है, पत्नी होकर चिंता होती है कि ये क्यों नहीं आए। உடனடியாக போனில் தொடர்பு கொள்கிறார்। तो आप कॉल करते हो अपने हस्बैंड को, ஏன் ஆனது என்று, क्या हुआ, ஏன் லேட் ஆயிடுச்சு என்று, क्यों लेट हो रहे हो आप। ஏன் அந்த உணர்வு? तो ये आपको तकलीफ क्यों होती है। அவர் 2 மணி நேரம் பொறுத்து வரப்போகிறார், 2 घंटे बाद तो वो पहुंच ही जाएंगे घर, காரியங்கள் இருக்கலாம், शायद रास्ते में है, कोई काम है। ஆனால் அவருக்கு ஏன் அந்த மனைவிக்கு ஆனவளுக்கு ஒரு பதற்றம் ஏன் வருகிறது? पर पत्नी के दिल में वो डर जैसा क्यों छा जाती है कि मेरा पति किधर है। அந்த பெண்கள் கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சிருக்கா? क्या आपने कभी तकलीफ उठाकर सोचा है इसके बारे में। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த உணர்வு என்பது எதற்கென்றால் அவர்களுக்கு அன்பின் நிமித்தம் அந்த உணர்வு வருகிறது। ये एहसास इसलिए होती है क्योंकि प्यार करते हैं पति से, तो चिंता होती है उनके दिल में कि ये क्यों नहीं वापस लौटे। ஆமென். हालेलुया। கணவன் மேல் ஒரு அன்பின் நிமித்தம் அந்த உறவு ஏன் லேட் ஆகிவிட்டது, 2 மணி நேரம் ஆகிவிட்டது என்று அந்த உணர்வு எங்கே இருந்தால் அன்பின் நிமித்தம்। क्योंकि पति की तरफ जो प्यार है दिल में, वो प्यार होने की वजह से एहसास होती है कि ये लौटे नहीं है, तो चिंता करने की वजह से कॉल करके ढूंढना शुरू करते हैं। ஹalleluya. ஹalleluya. உண்மைதானே? क्या ये सच है कि नहीं। பூமியில் அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் கொஞ்சம் ஏதோ காரியங்கள் நடைபெறும் போது நமக்கு ஒரு பதற்றம் ஏற்படுகிறது। तो दुनिया में हम देखें तो अगर पति के लौटने में देर हो रही है तो एहसास होती है कि देर हो रही है और ढूंढना शुरू करते हैं, ये दुनिया में है। ஆனால் நம்முடைய அதே போல நம்முடைய கணவரான இயேசுவை குறித்து நமக்குள்ள அந்த பதற்றம் இருக்கிறதா? पर रूहानी तौर पर बात करें तो हमारा दुल्हा जो यीशु है, उसको लेकर यही चिंता हमारे दिल में है कि नहीं। அவர் என்ன கணவராக இருக்கிறார், वो हमारा दुल्हा है அவர் எல்லாவற்றுக்கும் நான் அவருடைய உரிமையாளராக இருக்கிறேன், और हक जताकर हम जो भी चाहते हैं मांग सकते हैं। என் கணவர் நான் மனைவியான பிறகு, நான் கணவருக்கு மனைவியான பிறகு கணவர் பொறுப்பெல்லாம் எனக்கு உரியது। तो जो भी हमारा दुल्हा का है सब कुछ हमारा भी है, அவருடையதெல்லாம் என்னுடையது। जो भी यीशु का है हर चीज पर हमारा भी हक बनता है। அது மாத்திரமல்ல, அவருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் நான் உலகத்தில் என் கணவருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் நான் செய்ய மாட்டேன் அல்லவா, அதே போல என் கணவனால் நான் இயேசுவுக்கு பிடிக்க செய்யக்கூடாது அல்லவா। और तो देखें तो अगर जो भी हमारा हस्बैंड पसंद नहीं करते, वो हम इस दुनिया में भी नहीं करते हैं जो हमारे पति पसंद ना करें। तो अगर यीशु कुछ चीज़ को पसंद ना करें तो हम उस चीज़ को क्यों करते हैं। ஹalleluya. ஆனால் இயேசு மனைவியாக நம்மை எப்படி பார்க்கிறார் என்றால், तो हम अभी देखेंगे यीशु अपनी नज़र से हमें कैसे देखते हैं। நம் கவலையோடு இருக்கும்போது, तो जब हम दुख उठाते हैं கண்ணீரோடு இருக்கும்போது, या हम आंसू बहा रहे हैं போராட்டங்கள் கஷ்டப்படும்போது, या कोई तकलीफ उठा रहे हैं, அவர் நம்மை அணைக்கிறார், நம்மை காப்பாற்றுகிறார் அல்லவா, तो हम देखते हैं कि यीशु आकर हमारे साथ आकर हमें तसल्ली देता है, கொடுக்கிறார் அல்லவா, பேலன் கொடுக்கிறார் அல்லவா, हमें बल भी देता है। நம்மளை தாங்குகிறார் அல்லவா, क्या हमें वो चलाता है कि नहीं। நம்மளுக்கு எல்லாவற்றிலும் நம்மளுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார், हर हाल में हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। ஆமென், आमीन। சந்திக்கிறார் அல்லவா। क्या यीशु करता है कि नहीं। அவர் நம்ம எடுத்துக்கொண்ட எண்ணங்கள் நம்முடைய ஞானத்தின் நிமித்தம் தான் அந்த அன்பான உறவை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போகிறது, நம்முடைய ஞானத்தின் நிமித்தம்। हम क्योंकि हमारा अक्ल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यीशु के प्यार को इस तरीके से हम समझते नहीं हैं। நான் கஷ்டப்படும் போது என்னுடைய கணவரான இயேசு என்னை எல்லாவற்றிலும் தாங்கி வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்। जब मैं दुख उठा रहा हूँ या मैं कोई तकलीफ उठा रहा हूँ तो मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ खुद करता है, காரணம் நான் அவருக்கு சொந்தமானவன், क्योंकि मैं यीशु का हूँ, அவருக்கு நான் சொந்தம், क्योंकि मैं यीशु के लिए बनी हूँ, நான் என்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன், मैं अपने आप को सौंप चुका हूँ। அவருடைய ரத்தம் எனக்குள் ஓடுகிறது, यीशु के लहू बहाने की वजह से, ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்கிறேன், उसके लहू से हम मुले हुए हैं அவருடைய சாயலாக இருக்கிறேன், और हम उसके रूप में रचाए गए। அவர் எனக்குள் இருக்கிற காரியங்களில் அவர் எனக்கு பிரச்சனை என்பதும் உடனடியாக இயேசு என்னோட வந்து எனக்கு தேவைகளை சந்திக்கிறார்। इसलिए जो भी मेरे आगे प्रॉब्लम्स होती है यीशु खुद आकर उसको सॉल्व करता है। உண்மையா இல்லையா? क्या ये सच है कि नहीं।
ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் நாம் அந்த உறவை எப்படி நாம் மாற்றி விட்டோம் என்றால் पर हम उसी रिश्ते को हमने कैसे बदल दिया है? அவர் முதலாளியாகவும் நான் வேலைக்காரனாக மாற்றிவிட்டோம். அவர் கணவரை முதலாளியாகவும் மனைவியானவனால் வேலைக்காரியாக மாற்றிவிட்டோம். ओके, हम रिश्ते को ऐसे बदल रहे हैं कि वो मालिक बन गए और हम नौकर बन गए। அதனால தான் முதலாளி கிட்ட கேட்பதை போல ஐயா எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனை இருக்குது என்று நம் கணவரை முதலாளியாக வைத்ததினால் இன்னைக்கு அந்த உறவை நாம் அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கிறோம். क्योंकि पति को पति के जगह पर नहीं बट एक मालिक के जगह पर रखकर हम नौकर बन के कहते हैं मालिक मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मालिक मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, हम मांगते रहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் என்னுடைய கணவர் என்று இருந்தால் நான் என்னுடைய மனைவியான உறவு எப்படி இருந்தது? अगर हम उनको पति मानते हैं तो हक जताकर कैसे मांगेंगे? நான் அவரை இயேசுவாக பார்ப்பதினால், அவர் ஒரு தெய்வமாக பார்ப்பதினால், அவர் ஒரு கடவுளாக ஒரு பொருளாக ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்து பார்ப்பதினால் அந்த அன்பை நான் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறேன். क्योंकि हम यीशु को ऐसा जगह पर रखते हैं, कहते हैं नहीं वो मालिक है, वो सारी दुनिया का मालिक है, हमें रचाने वाला है, उसको इस तौर पर हम देखते हैं कि हम पहचान नहीं पाते कि यीशु की प्यार कैसा है हमारी तरफ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கணவன் மனைவியுடைய உறவை நாம் எப்படி மாற்றிவிட்டோம் என்றால் முதலாளி வேலைக்காரி என்ற அளவுக்கு மாற்றிவிட்டோம். तो पति पत्नी की जो रिश्ता है उसको हमने एक मालिक और नौकर के रिश्ते पे हमने बदल दिया है। ஏனென்றால் நம்மளுக்கு உலகக்குரியமான கணவன் மனைவியை வைத்துவிட்டு பார்த்ததினால் தேவனுடைய காரியங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது. क्योंकि हम दुनिया में जो पति पत्नी के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं उस हिसाब से हम इस रिश्ते को भी खराब करते हैं। ஏனென்றால் நம் தேவைகளை நாம் நம்முடைய அறிவில் தேவைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருப்பதினால் நாம் அதை குறித்து நாம் இயேசுவை குறித்து கவலைப்படவில்லை. क्योंकि दुनिया में ना हमारी अकल इस्तेमाल करके हमारी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, तो जब यीशु को समझने की बारी आती है तो हम समझ नहीं पाते। காரணம் இந்த வேதத்தை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் என்றால் உலகத்துக்கேற்ற வேதமாக நாம் பார்க்கிறோம். क्योंकि जब हम कलाम पढ़ते हैं उसको भी हम दुनियावी नज़र से पढ़ते हैं। அதான் 14வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தின்படி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். इसलिए हम यूहन्ना 13 का 14 யோவான் 14வது அதிகாரம் 14 का 13 पढ़ें प्लीज़। यूहन्ना 14 का 13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ஹல்லேலூயா. आमेन। हालेलुया। என் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் என் பிதாவானவர் செய்வார் என்று இயேசு நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். तो यीशु ने हमें वायदा दिया है कि मेरे नाम में जो भी मांगो दिया जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் உலகத்துக்கு பிடித்துக்கொண்டு நாம் இயேசுவை தெய்வமாக பார்க்கிறோம். हम इस वायदे को उठाकर दुनियावी नजर से देखकर यीशु को एक खुदा मानकर दुआ करते रहते हैं। ஆனால் இயேசுவை நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று இயேசு நமக்கு சொல்கிறார் என்றால் पर यीशु ने हमें सिखाया है कि उसको किस नजर से देखना है। 21வது வசனத்தை வாசிப்போம். 21 को पढ़ के देखें। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमेन। हालेलुया। கற்பனைகள் என்றால் அவருக்குரியவைகளை நான் சிந்தித்தேன் என்றால் तो अगर कहा गया है तो यीशु कहता है अगर जो भी मेरा आज्ञा को माने பிரியமானதை நான் செய்வேன் என்றால் और अगर वो जो करेंगे जो मैं चाहता हूँ वही करें என் பரலோகத்துடைய குடும்பமானது பிதாவானவர் சந்தோஷப்படுவார். तो मैं देखता हूँ कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर मुझे लेकर खुश होगा। நானும் என் மனைவியோடு இருந்து என்றென்றும் மனைவியோட கணவன் மனைவியோட வாசம் செய்வோமாக இருப்போம். और हम भी पति पत्नी जो दुनिया में है हम भी सही तरीके से रिश्ता निभा रहे होंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவருக்கு விருப்பமானதை செயல்படும் போது நிச்சயமாக அதை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். जब भी हम वो करते हैं जो यीशु चाहता है तो हर जरूरत को खुद पूरा करता है। அதனால தான் அந்த உறவை தான் இயேசு சொல்கிறார் 17வது வசனத்தை 16 17. इसलिए हम 16 और 17 को पढ़कर देखेंगे कि उस रिश्ते को कैसे एक्सप्लेन करता है यीशु। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमेन। हालेलुया। இயேசு நம்ம கிட்ட சொல்ற காரியம் तो यीशु हमसे कह रहा है இது ஒரு பந்தம், இதுதான் ஒரு கல்யாண பந்தம் என்பது. ये अगर एक शादी हो रही है और वहाँ पर रिश्ता बन रही है तो यही है वो रिश्ता। இட்ஸ் a bond. இது ஒரு அழகான ஒரு பாண்டிங் பந்தம். रिश्ता ஆமா. रिलेशनशिप ரிலேஷன்ஷிப் அழகான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு கணவன் மனைவி வராங்க.
முதல் நாள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு முதல் நாள் கணவனும் மனைவியுமாக நிக்கிறீங்க. आप अभी मान लें शादी का पहला दिन है, पति पत्नी होकर आप आ रहे हो, ரூம்ல வந்து இருக்கிறீங்க. तो आप कमरे में पहुंच गए, முதல் நாள் பேச போறீங்க. तो पहली दफा आपके बीच में बातचीत हो रही है, உங்கள் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும்? तो आपकी सोच कैसी हुई होगी? நாம் கடந்து கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்ப்போம். आप सोच के देखें, முதல் கணவன் மனைவியை கல்யாணம் பண்ணவுடன் முதல் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்? शादी होने के बाद जब एक दूसरे को आपने देखा है, बातचीत की है, तो कैसा महसूस हुआ? யாருமே கல்யாணம் பண்ணல. किसी ने भी शादी नहीं की। அந்த உறவு என்பது சந்தோஷம், உள்ளுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருந்து கொண்டிருக்கும். उस रिश्ते को लेकर आपके दिल में इतनी खुशी हुई होगी ना, கணவர் என்னை குறித்து என்ன நினைக்கிறார்? क्या मेरा पति मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, மனைவியானவள் என்னை குறித்து என்ன நினைக்கிறார்? या मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोच रही है, என் எதிர்காலத்தை குறித்து என்ன எப்படி हमारा நினைக்கிறார்? आने वाले कल कैसा होगा। பலவிதமான கற்பனைகள் இருக்கும் அல்லவா? काफ़ी चीज़ तो होंगे ना हमारी सोच में उस वक्त, உண்டா இல்லையா? हाँ या नहीं? அல்ல, யோசனை பண்ண பார்த்தா आप सोच क्यों रहे हो? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு பந்தம், ஒரு சந்தோஷம். ये एक रिश्ता है, एक खुशी की रिश्ता है। ஆமென். हालेलुया। அதே உறவு தான் இயேசுவுக்கும் எனக்குள் இருக்கிறது. वही रिश्ता है हमारा हर एक का यीशु के साथ। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏனென்றால் அவர் என்னோடு நான் அவரோட வாழப் போகிறேன். क्योंकि हम यीशु के साथ जिंदगी जीने वाले हैं। ஆமென். हालेलुया। அப்ப பாருங்க, அந்த இடத்துல கணவனும் மனைவியும் பக்கத்தில் ஒருத்தரை பார்க்கும்போது जब पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, ஒரு தனியாக ரூமில் வச்சு வைத்துக் கொள்ளுங்க. ओके, अब मान लें कि वो अकेले बैठे हैं कहीं कमरे में या कहीं पर अकेले बैठे हैं, தனியாக ரூமில் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்? तो अगर वो अकेले बैठे हैं तो क्या होगा? ஒரு நமக்குள் உணர்வு ஏற்படும். एक एहसास होगी हमारे अंदर என் கணவரை குறித்து நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வு, कि मैं मेरे पति को और पहचानना चाहती हूँ, என் மனைவியை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும், मेरी पत्नी को मैं और पहचानना चाहता हूँ, என்னுடைய நன்மைகள் தீமைகள் எல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறேன். मेरी जो भी अच्छी काम है, जो भी मैं बुरी हूँ, वो सब मैं उनको बता दूँ। என் கணவன் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறேன். मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे पूरी तरीके से समझ लें, என்றால் அது அவங்களுக்கு புரிதலுக்குரிய நேரம் தான் அந்த உறவு. क्योंकि एक दूसरे को समझने का वक्त है वो, அதுக்கு பெயர் என்ன? और उस वक्त को क्या कहलाते हैं? உணர்வு. एहसास। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது பேர் தான் நம்மளுக்கு அழகான ஒரு தமிழ் ஒன்று பேர் அன்பு. यही है, एक और लफ्ज इस्तेमाल करें तो प्यार। ஆமென். हालेलुया। அந்த கணவன் மனைவிக்குள் அந்த உறவு நமக்குள் இருக்குமானால், अगर पति पत्नी के बीच में ये रिश्ता अगर होता, அந்த உலகத்துடைய காரியங்கள் நமக்குள் இருக்குமானால், और ये दुनियावी चीज पर देखा गया, तो अगर ये चीज अंदर है तो நான் யோசித்து பார்ப்பேன், நீ என்னுடைய கணவனான இயேசு கிறிஸ்துக்குள் எனக்குள் வரவில்லை. तो आप सोच के देखें, अगर यीशु दुल्हा है तो ये रिश्ता मेरा यीशु के साथ क्यों नहीं है? அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம கொஞ்சம் நம்ம சிந்தித்து பார்ப்போம், கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சிந்திப்போம். थोड़ी देर के लिए हम कुछ अलग तरीके से इसके बारे में सोच के देखेंगे। என்னுடைய சரீரம் கட்டிலில் இருக்கிறது, உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். मैं एक पलंग पर बैठा हूँ என் மனைவி என் எதிரில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். और मेरे सामने मेरी पत्नी बैठी हैं, அதே போல என் ஆத்மா சரீரம் பக்கத்தில் இருக்கிறது. और मेरे पास बिल्कुल पास मैं रूम में हूँ, அதே ஆத்மாவோட அந்த பக்கம் இயேசு இருக்கிறார். और उसके सामने यीशु मौजूद है। கணவனான இயேசு அங்க இருக்கிறார், மனைவியான நான் இங்க ஆத்மாவில் இருக்கிறேன். तो देखता हूँ कि वहाँ पर यीशु दुल्हा है, यहाँ पर मैं दुल्हन हूँ, சரீர பிரகாரம் நான் இங்க இருக்கிறேன், சரீர பிரகாரம் மனைவி அங்க पर இருக்கிறார். शारीरिक तौर पर मैं दुल्हा हूँ, मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சரீர பிரகாரம் மனைவியை நான் பார்த்து ஏக்கமாக அன்பு செலுத்தும் போது, जब मैं शारीरिक तौर पर जिस पत्नी को आंखों से देखता हूँ, उसके साथ अगर मैं प्यार कर सकता हूँ, என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஏக்கத்தை கொண்டு வரும்போது, और अगर वो चाहती है कि मैं उसको ठीक तरीके से समझूं, மனைவி என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற என் உணர்வுகளை நான் வெளிப்படுத்தும் और போது, मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी एहसास होती है कि उसको मैं ठीक से प्यार करूं, அதே போல என்னுடைய ஆத்மாவான கணவரான இயேசு இங்க இருக்கும்போது, மனைவியான நான் இருக்கும்போது என்னோட உறவுகள் எப்படி இருக்கு? वैसे ही आप परख कर देखें, अगर रूम में आप दुल्हन हो और यीशु मौजूद है, तो वही प्यार बीच में होना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। பாருங்கள், இப்படி வைத்துக் கொள்வோம். आप ऐसे समझ लें, கணவன் சரீர பிரகாரமாக கணவன் இருக்கும்போது மனைவிக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கலாம், अभी शारीरिक तौर पर पति मौजूद है, கற்பனைகள் बट அதிகமாக இருக்கலாம். पत्नी को काफी जरूरत है, और वो कुछ फ्यूचर को लेकर कोई प्लान्स है उसके दिल நான் में। திருமணமான பிறகு தனி குடித்தனத்தோடு இப்படி அழகாக வாழ வேண்டும் என்று கற்பனைகள் நிறைய இருக்கலாம். शायद वो सोच रही है कि शादी करने के बाद अकेला एक घर लेंगे और वहां पर जाके घर बसाएंगे, நான் இப்படிப்பட்ட இடத்தில் அழகாக வாழ வேண்டும், या இப்படிப்பட்ட इस जगह में honeymoon जाना போக है, வேண்டும் என்று या कहीं पर हनीमून पर जाना है।
அதெல்லாம் கணவனிடத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண और वो आकर एक एक करके पति से बात करेंगी கணவனும் அதை குறித்து பேசும்போது ஒரு சந்தோஷம் और இருக்கு. पति भी उन बातों को मानकर कुछ अपनी पत्नी के लिए करने का यत्न करेगा. உண்மையா இல்லையா? ये सच है कि नहीं? ஆமென். सही रह रहा हूँ. இப்போ வரும். நோ இயேசு கணவன் இயேசு வந்திருக்கிறார். अभी आपकी बारी है सवाल का. अभी यीशु है और मैं दुल्हन हूँ. இயேசு கிட்ட கணவன் கிட்ட என்ன பண்ணுவோம்? तो हम जाके हमारे दुल्हा के साथ बात कैसे करें? இயேசு ஒரு 10,000 கொடு. यीशु मुझे 10,000 यूरो दे दे. இயேசு அங்க வீடு வாங்கணும். यीशु मुझे वो घर खरीदना है. இயேசு நான் அங்க அந்த புருஷனோட போய் அங்க வாழ போறேன். यीशु मैं वहाँ जाने वाला हूँ उसके साथ. இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தா हम अगर ऐसे बात करते रहेंगे என் ஆத்மாவன் என் கணவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? तो मेरा रूहानी दुल्हा को कैसा लगेगा? இயேசுக்கு எப்படி இருக்கும்? यीशु को कैसा लग रहा होगा? संतोष रमन भाई, यीशु को कैसा लग रहा होगा? सोनिया को क्यों देखते हैं? உங்க மனைவி பார்க்கட்டும், இயேசுவை பார்க்கட்டும். எப்போ கேட்டாலும் இயேசு கொடுக்குறாரு அவருக்கு. ஆமா, இயேசு கொடுக்கறாரா கீழே இருக்கிறவங்க கொடுக்கறாங்கன்னு தெரியும். वो कह रहे हैं कैसे मानते हो कि यीशु ने दिया? शायद दुनिया का सरदार दे देगा. देवनता கேக்குறாரா? இயேசு கொடுக்கறார் என்றால் என் இருதயம் இயேசு நோடி நாடி போகுது. अगर यीशु देता है तो यीशु के और नजदीक அவருக்காக पहुंचोगे. நான் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறதுக்கு என் சரீரத்தை எல்லாவற்றையும் வாஞ்சியோடு செயல்படுவதாக. क्योंकि यीशु के लिए हर चीज अगर हम पूरे दिल से करें तो यीशु देगा. ஹalleluya. हालेलुया. என்ன வரும்? ஏன் அந்த உறவு? நான் அது எதுக்காகனா நம்முடைய யோசனையை நம்முடைய எண்ணத்துக்கு கொண்டு வரும்படியாக தான் இந்த காரியங்களை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். मैं आपको सिर्फ ये बात समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप सोचते हो उस चीज को छोड़कर दिल में खुदा कैसा चाहता है कि आप काम करें और इस रिश्ते को समझें. செயல்படும்போது जो भी हम करते हैं, சிந்தையும் எண்ணமும் ஒருமனப்படும்போது தான் நாம் சொல்கிற காரியமானது அது செயல்படுவதாக. जब हमारी सोच और दिल की बात एक हो तब ही जाकर हम ठीक से कर पाते. ஹalleluya. हालेलुया. அதனால உலகத்தில் காலேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெंट ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி விட்டு சில காரியங்கள் செய்வாங்க. इसलिए हम देखते हैं दुनिया में भी अगर कुछ नए चीज करने वाले हैं तो एक एग्जाम्पल के साथ या कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ के साथ शुरू करते हैं. கணவன் மனைவி உறவை வைத்து இயேசுவுக்கும் எனக்கு உறவை வைத்து நான் உங்களுடன் பேசுவேன். इसलिए मैं आपको एक पति पत्नी के रिश्ते को समझा रहा हूँ ताकि आप यीशु और हमारे रिश्ते को समझें. பாருங்கள், அந்த உயிருள்ள எனக்கும் என் மனைவிக்கும் உள்ள உறவை கொண்டு வருவது எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அன்பு என்ற ஒரு காரியம் எங்களுக்குள் பிணைக்கிறது. तो इस दुनिया में एक पति और पत्नी के बीच में देखते हैं इस रिश्ता की शुरुआत प्यार से होती है. அதே போல இயேசுக்கும் எனக்குள்ள உறவை கொண்டு வருவது எது என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர். तो ऐसे ही देखें तो यीशु और हमारे बीच में उस रिश्ता को मजबूत करता है पाक रूह. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த இயேசு என்ன நினைக்கிறார் என்ற உணர்வை கொண்டு வருவது யார் என்றால் உணர்வுள்ள ஆவியானவர் பரிசுத்த तो ஆவியானவர். यीशु क्या सोच रहा है इस बात का एहसास हमें दिलाता है पाक रूह. ஹalleluya. हालेलुया. இன்று இயேசு எப்படி இருக்கார் தெரியுமா? आज आप जानते हो यीशु कैसा है? நம்மத்தில் எப்படி இருக்கார் தெரியுமா? हमारे बीच में यीशु कैसा बैठा है? நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறீர்கள், आप इंडिया में हो एग्जाम्पल के लिए, அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார். और यीशु अमेरिका में है. அவர் மாசம் மாசம் பணம் அனுப்பி கேக்குறீங்க. हर महीना आप पैसे मांगते हो. 2ஆம் தேதி ஆச்சுனா சரி எனக்கு 2 மில்லியன் வேணும்னு கேக்குறீங்க. 2 तारीख को आप मैसेज सेंड करते हो, मेरे लिए 2000 सेंड कर दो, அவர் 2 மில்லியன் அனுப்புறாரு. और यीशु आपको 2000 भेज देता है. மாச கடைசில கஷ்டமான உனக்கு கேக்குறீங்க அனுப்புறாரு. और महीने पूरे होने से पहले पैसे खत्म हो गए तो दोबारा मांगते हो, वो भेज देता है. ஏனென்றால் அவர் கணவர் அனுப்பி ஆகணும்னு சொல்றீங்க. क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, उसको भेजना है, उसका फर्ज है. அதே போல தான் அவர் அங்க இருக்கார், நான் இங்க இருக்கிறேன், அவர் அங்க இருக்கிறார். तो हम देखते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ बट वो अमेरिका में रहता है. அது என்ன உறவு இருக்குது? तो वहाँ पर कौन सा रिश्ता है? அதே போல தான் இன்று இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார். आज ऐसे ही यीशु स्वर्ग में है, हम दुनिया में हैं, என் தேவைகளை அவர் கேட்கிறேன். और मेरी ज़रूरतों को मैं उसके आगे पेश करता हूँ, எனக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார். और मेरा दुल्हा मेरा हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த உறவு இருக்கா? बट ये रिश्ता क्या है वाकई में? சிந்திக்கும்படியாக. सोच के देखिए. அப்ப தேவன் எனக்குள்ள அந்த உறவு வேண்டும் என்றால் अगर आप चाहते हो ये रिश्ता आपके बीच में हो, நாம் போன் எடுத்து फ़ोन उठाकर இந்தியாவிலிருந்து என் கணவர் 2000 மில்லியன் அனுப்பினதும் इंडिया से कॉल करके, जब मेरा पति मुझे पैसा भेज देता है तो कॉल करके நீங்க அனுப்பின பணம் எனக்கு வந்து சேர்ந்தது. फ़ोन करके बताएंगे ना, आपने जो पैसे मुझे भेजे हैं मुझे मिली है, आप कैसे हो?
क्या आप काम, உடம்பு எப்படி இருக்கிறது आप कैसे हो, आपका हाल कैसा है? நான் விசாரிக்கும் போது என் கணவரான அந்த அமெரிக்காவில் இருக்க கணவருக்கு எப்படி இருக்கும் तो जब आप उसका पूछताछ करोगे तो उसको कैसा एहसास हो रहा होगा? அல்லேலூயா हालेलुया। அதான் கேட்டிருக்கான் आपने कभी ऐसा पूछा है? சிந்திக்க முடியாது सोच के देखें। என் கணவர் செய்கிறார் நான் கேட்டவுடன் எல்லாத்தையும் செய்கிறது मेरा पति जो भी मैं मांगता हूँ मेरा ज़रूरत पूरा करता है நான் வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன் और मैं भी लेता रहता हूँ उससे जो भी मिलता है। நாம் தசமபாதம் கொடுக்கிறோம் हम दसवंत देते हैं, காணிக்கை கொடுக்கிறோம் हम भेंट चढ़ाते हैं। அது உலகப்பிரமா ஒரு காரியம் பார்த்து எங்க மாமியார் எனக்கு சாப்பாடு போடுறோம் और अगर दुनियावी नज़र में देखा गया तो जैसे हम किसी को ऐसे ही खाना दे रहे हैं, யாருக்கு நம்ம காசு கொடுக்கிறோம் अगर किसी को ज़रूरत है तो पैसे दे देते हैं। ஏன்னா அவர் அனுப்புறாரு அவங்க உறவு இருக்குது அதுக்கு நான் உதவி செய்யறோம் क्योंकि मेरा पति पैसे बेचते हैं तो मैं उसको इस्तेमाल करके जैसे चाहे करती हूँ। அதனால் என் இயேசுவுக்கு சந்தோஷம் வருமா पर ये सब करने से क्या यीशु खुश होगा? அவரோட நான் பேசும்போது தான் நான் சந்தோஷம் पर यीशु के साथ जब हम बात करते हैं ना तब यीशु खुश होगा। ஹalleluya हालेलुया। அவர் நான் என்னுடைய வலிகளை அவர் உணரும் போது நிச்சயமாக அந்த வலிகளை ஆற்றுவதற்கு செய்ய நீதிக்கு ஒரு வல்லவராக இருக்கிறார் जब उसके दर्द को समझने के लिए हम उसके साथ बात करेंगे ना तब जाके एहसास होगी कि प्यार कितना करता है हमसे। ஹalleluya हालेलुया। பாருங்க இன்று இந்த வசனம் இந்த இதோட ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் இருக்கு அந்த சம்பவத்தை சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் इसमें हम एक और चीज़ है जिस पर गौर करेंगे फिर हम दुआ करेंगे। யோவான் 4வது அதிகாரம் यूहन्ना 4 47 47 47 and 48 47 வாசிப்போம் यूहन्ना 47 4 47 48 47 वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करो। हालेलुया। हालेलुया। ஒருவனுக்கு கலிலேயாவில் இருக்கிற ஒரு மகனுக்கு உடம்பு சரியாம சீரியஸாக இருக்கிறான் அவன் இயேசுவை நோக்கி வருகிறான் गलील में हम देखते हैं कि एक बंदा है उसका बेटा बीमार है वो यीशु के पास आता है இயேசு அவரிடத்தில் வந்து குணமாக்க முடியும் வந்து கேட்கிறான் और आकर यीशु से ये विनती है कि मेरा बेटा को ठीक कर दे। இயேசு அவனுக்கு சொல்கிறார் நீ அவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வருவதற்கு நீ விசுவாசித்தால் போதுமே और यीशु कहता है इतने दूर से आने की क्यों तकलीफ की, विश्वास करते तो वो ठीक हो जाता। நான் அங்கிருந்து நான் என்னை விசுவாசி எப்படி விசுவாசிக்கிறேன் வீட்டில் வந்து கையை வைக்கணும்னு விசுவாசிக்கிறேன் पर उसका विश्वास यह है कि नहीं यीशु घर पे आए और बेटे पर हाथ रखे। சரி உன் அற்புத அடையாளங்கள் அற்புதத்தை தெரிகிறாய் அப்போ அவன் குணமாவான் என்று சொல்கிறார் पर यीशु कहता है नहीं इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, तू जा वो ठीक हो जाएगा। ஆனால் அந்த மனுஷன் ராஜாவின் மனுஷன் சொன்னா இல்லை அல்ல இயேசு நீங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் पर वो कहता है नहीं तू मेरे साथ आ। உடனே இயேசு சொல்கிறார் போ உன்னுடைய மகன் குணமாகிவிட்டார் पर यीशु का जवाब ये था कि नहीं तू वापस लौट, तेरा बेटा ठीक हो गया। 50வது வசனத்தை வாசிப்போம் अभी आप 50 को पढ़ें। यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया। हालेलुया। அந்த हालेलुया। வசனம் என்ன சொல்லுது और उस कलाम में क्या लिखा है अमा? நம்பி அதை oui, சொல்லுது oui। उसमें ऐसा लिखा गया है कि उस मनुष्य ने उस बात की प्रतीति की यानी कि उस बात पर विश्वास किया। விசுவாசத்தோட போனாலும் நம்பி போனாலும் नंबी पुनर प्रतीति நம்பி அதான் விசுவாசம் उसको मानकर, हाँ विश्वास नहीं बट मानने की बात है यहाँ पर। यीशु की बात को मानकर वो वापस चला गया ஆனால் வந்தது எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வந்தான் பல மைல் தூரத்திலிருந்து और வந்தான் काफी दूर से आया था वो। ஆனால் இயேசு சொல்கிறார் சரி போ உன் குணமா உன் மகன் पर यीशु कहता है नहीं तू वापस चल, तेरा बेटा ठीक हो गया। அதை நம்புறான் उस बात को मानकर वो वहां से वापस लौटता है। விசுவாசி நீ போ நான் அவன் குணமாகிட்டான்னு சொல்லும்போது நம்பி போகிறார் यीशु कहता है तू विश्वास रख, तू जा, तो यीशु का बात को मानकर वहां से वो वापस चलता है। விசுவாசத்திற்கும் நம்பிக்கைக்குரிய காரியங்களை தான் உங்களோட तो विश्वास और मानने की बात का फर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। கணவன் மனைவிக்கு இயேசு கணவன் மனைவிக்கு உறவுக்கும் அவர் यजमाना இருக்கா நான் வேலைக்காரனா இருக்கிற உறவை தான் நான் இப்போது உங்களோட பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் पति पत्नी के रिश्ता का हक कैसे जताते हैं और एक मालिक और नौकर का हक कैसे जताते हैं उसका फर्क आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। பாருங்கள் அவன் நம்பி போறான் उस बात को मानकर वो वापस चला गया। और आप अगला वचन पढ़े। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। நம்பி போகும்போது அங்க ஒரு காரியம் நடைபெறுது அவன் மகன் குணமாகிட்டான் यीशु का बात मानकर वापस चल ही रहा था, रास्ते में था जब उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं उसका बेटा ठीक है। சந்தோஷமா இல்லையா क्या खुश हो गया कि नहीं? ஹalleluya हालेलुया। ஆனால் அவன் என்ன செய்கிறான்
पर वो क्या करता है? இந்த நாம் அதனால தான் தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கு. ऐसे करने की वजह से हमें वो आशीष जो यीशु से मिलती है ठीक से हमें मिल नहीं सकता। இயேசுவை நம்பி வந்தான். वो 100% यीशु पर विश्वास रखकर आया था, வந்தால் குணமாகும் என்று வந்தான். यीशु आएगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। மரணத்தில் இருக்கும்போது அவனை விட்டு விட்டு வருகிறான். जब उसकी मौत होने वाली थी उसको छोड़कर वो आ गया था, இயேசு சொன்னதும் அவர் நம்புகிறான் அதை. और जब यीशु ने कहा तो वो मानकर वापस लौटा, ஏனென்றால் இயேசு வரவில்லை. क्योंकि यीशु तो नहीं आया, ஆனா சொல்கிறார் அந்த வார்த்தை நம்பி போறான். पर यीशु का वचन पर उस वचन को मानकर वो वहां से चला गया। என்னவென்றால் இயேசு வந்து குணமாக்க வேண்டும் என்று. और वो सोच रहा था कि नहीं यीशु आएगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, இயேசு வராமல் இப்போ என்று விசுவாசத்தோடு पर यीशु नहीं आया। यीशु ने कहा वो ठीक हो गया, அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. तो उसको अकल में ना इस बात की विश्वास नहीं हो रही थी। என்ன நடக்குது பாருங்க. तो आगे देखते हैं क्या हुआ। 52 वचन. अब अगला वचन पढ़ें 52। उसने उससे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका जबर उतर गया। आमीन, हालेलुया। பாரு வேலைக்காரன் வருகிறான். हम देखते हैं वहां पर नौकर आ रहा है வேலைக்காரன் சொல்லிட்டு குணமாயிடுச்சு. और वो कहता है बेटा ठीक हो गया, உடனே அவனுக்கு எந்த நேரத்தில் குணமாயிடுச்சு. पर उसका सवाल ये था कि कितने बजे था। ஏனென்றால் அவன் சொல்கிறான் நேற்று சாயங்காலம் 4 மணி என்று சொல்கிறான். शायद कल शाम को कुछ 4 बजे के आसपास। இயேசு 4 மணிக்கு தான் குணமாக்கினார். यीशु ने मेरे साथ 4 बजे तो बात की। இதுவும் அதுவும் கரெக்ட். अच्छा, ये और वो मैच होते हैं। ஹalleluya. இது நம்முடைய விசுவாசம் அப்படிதான். आजकल हमारा विश्वास कुछ ऐसा ही है। ஒருவேளை शायद இயேசு 4 மணி குணமாக்குற காரியங்கள் இருக்கும்போது जब 4 बजे यीशु कह रहा था कि लड़का ठीक हो गया, அவங்க மனைவி வேற ஒரு ஆளை பார்த்திருந்து, अगर उनकी पत्नी ने किसी और को देखा होगा, ஒரு வைத்தியரை பார்த்திருந்து, मान लो कि कोई डॉक्टर के पास गई हो அந்த மாத்திரை கொடுத்திருப்பாரு और उस डॉक्टर ने कुछ दवाई दी होगी, இந்த மாத்திரை போடுங்க குணமாயிடும். तो दवाई देने से वो कहता है कि वो ठीक हो जाएगा, அடுத்த 10 நிமிஷம் இவர் இயேசு அங்க பார்க்கறாரு. पर 10 मिनट के अंदर यीशु से मुलाकात पति का हो रहा है। அப்ப டவுட் வந்திருக்குமா இருக்காதா? तो वहां पर डाउट हो सकती थी ना, மனைவி கொடுத்த மாத்திரையா இயேசு கொடுத்த வார்த்தையா? क्या मेरी बीवी ने जो दवाई दी वो है या यीशु ने जो कहा था वो वचन है? ரமணா பாய் रमन भाई, இல்லையா? அப்ப இன்றைக்கு நம்மளுடைய விசுவாசம் இயேசு கிட்ட வந்திருக்கிறோம். तो हमारा विश्वास है यीशु के ऊपर, तो हम आए हैं यीशु के पास, यीशु को मानकर आए हैं। குளிரிலும் மழையிலும் கடந்து வரோம். बारिश में ठंड में जो भी है आते हैं यीशु के पास। இப்ப எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு கடந்து வருகிறோம். जो भी प्रॉब्लम्स हो हर संडे हम यहाँ पे आ जाते हैं। இது எதற்காக? क्यों आते हैं? இயேசு நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். यीशु से मिलना है, வந்துவிட்ட பிறகு और आने के बाद நாம் நினைத்ததை போல இயேசு செய்ய வேண்டும். हम जैसे चाहते हैं वैसा यीशु करे। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு நான் குழந்தை கொடுக்கிறேன்றார் ஒருத்தருக்கு. यीशु कहता है चलो मैं आपको एक बेटा दे देता हूँ। ஆம்பளை பிள்ளை வரும் போன்ட்டாரு. यीशु कहता है मान लो कि ओके आपको एक लड़का दे दूंगा, ஆனா பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துச்சுனா पर अगर एक लड़की पैदा हुई, குழந்தை பிறந்துச்சா இல்லையா? बच्चा तो पैदा हुआ ना, ஏன் ஆண்டவரே ஆம்பளை தானே சொன்னீங்க ஏன் பொம்பளை வந்து? पर खुदाया आपने कहा था लड़का है, ये लड़की कैसे पैदा हुई? அப்ப ஒருவேளை என்னுடைய தமிழ் திறமை தான் நினைக்கிறேன். शायद मेरी वजह से है, मैंने शक किया। பாருங்க நம் இயேசுவை குறி விசுவாசத்தை நாம் எப்படி குச்சைப்படுத்துற ஒரு காரியமாக இருக்கு. अभी देखिए यीशु पर जो विश्वास है उस पर कैसे शक करते हैं हम। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க அடுத்த வசனத்தை பாருங்க. अगला वचन अमती 2 படிச்சிட்டாரு। 53. आप 53 पढ़ें प्लीज। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उनसे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। வீட்டில் எல்லாரும் போய் டிஸ்கஸ் பண்ண பிறகு தான் நம்பிக்கை விசுவாசமாக மாறிடும். हम देखते हैं घर पहुंचने के बाद यीशु के बात मानकर वो पहुंच गया, बट वहां पहुंचकर वो मानने वाली बात को उसने विश्वास में बदल दिया। ஹalleluya. हालेलुया। சொல்லும்போதே விசுவாசம் வந்திருக்கு. जब यीशु ने कहा था तभी विश्वास चाहिए था, ஆனா வரவில்லை. पर तब विश्वास नहीं थी। ஆனா அதே ஒரு நேரத்துல நான் மத்தேயு புத்தகம் ஒரு சம்பவம் இருக்கு. மத்தேயு 15வது அதிகாரம் Matthew 15:21 Matthew 15:21ல ஒரு சம்பவம் இருக்கு. அது வீட்ல போய் வாசிங்க. ये आप घर जाके पढ़ें, अभी पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। ஒரு பெண் தன் மகளுக்கு சத்துரு பிடித்திருக்கிற மகளை கொண்டு வருகிறார். மகளை குறித்து
இயேசுவிடத்தில் வருகிறாள். हम देखते हैं एक स्त्री आती है अपनी बेटी को लेकर चिंता होकर, அவள் பிற ஜாதியான பிற யூதன் பெண் அல்ல, பிற ஜாதியான பெண், பிற ஜாதி. और वो अन्य जाति से थी। ஆனால் அவள் இயேசுவிடத்தில் வரும்போது पर जब यीशु के पास आई, இயேசு சீஷர்கள் சொல்கிறார்கள், அவர்களை நான் யூதர்களுக்கு தானே வந்தேன் தவிர மற்றவர்களுக்கு வரவில்லை என்று சொல்கிறார். तो यीशु के शागिर्द कहते हैं ये यहूदियों के लिए आया था। அப்ப இயேசு ஒரு வார்த்தை, கடினமான வார்த்தை சொல்கிறார். और वहाँ पर यीशु कहता है நான் நாய்களுக்கு போடுற அது பிஸ்கட்டை எடுத்து நாய்களுக்கு போட முடியாது. जो बच्चों को हम खिलाते हैं क्या हम कुत्तों को दे सकते हैं? அவர் சொல்கிறார், அது துண்டு விழும் இல்லையா, அதுவாக நான் ஒரு எடுத்துக்கொள்கிறேன். पर वो औरत कहती है आपके मेज में से जो भी गिरता है उसमें से कोई टुकड़े मुझे दे दे। இயேசுவிடத்தில் அந்த இடத்துல இயேசு என் மகளை குறித்து ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் என் மகள் குணமாவல் என்று சொன்னார். क्योंकि उसकी विश्वास ये थी कि अगर यीशु एक लफ्ज अपने जुबान खोलकर कहेगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது அவன் இயேசு விசுவாசிக்கிறார். और तकलीफ उठाकर वो आई थी यीशु के पास विश्वास के साथ। எல்லாம் இருந்து தன்னுடைய காரியங்கள் வேதனைக்குரிய காரியங்கள் வரும்போது நாம் யோசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். पर जो भी हम जानते हैं, जानने के बावजूद जब हमारी बारी आती है तो हम सोचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். यीशु कल आज और कभी भी नहीं बदलता है। ஆமென். हालेलुया। அதனால இயேசு சொன்ன காரியங்கள், உங்களுக்கு அந்த உறவு அன்பு ஒரு காரியம் வர வேண்டுமா, நான் பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுக்கிறேன். तो यीशु कहता है अगर आप चाहते हो मेरे साथ आपका रिश्ता मजबूत हो तो मैं आपको पाखरू दे देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। உலகம் தோற்றேற்றவும் அறியாது, ஆனால் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். क्योंकि यीशु कहता है दुनिया तो नहीं पहचानेगी बट आप पहचानोगे मुझे। என்னை விசுவாசித்தால் பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் கொடுக்கிறேன். मुझ पर विश्वास रखोगे तो पाखरू बेच दूंगा। என்றால் அவருடைய அன்பை நாம் புரிந்து கொள்வது. पाखरू इसलिए बेचता है ताकि हम उसके प्यार को समझें। எனக்குள் எவ்வளவு உணர்வு என்பதை நான் அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது. और यीशु का जो भी सोच समझ है उसके एहसास दिलाने के लिए पाखरू की जरूरत है। இயேசு சொன்ன காரியம், நீ ஜெபிக்கிறது என்னவென்று தெரியாதபடினா, तो यीशु कहता है क्योंकि तू नहीं जानता दुआ कैसे करना है, அன்பு காட்டுறது எப்படி என்று தெரியாதபடினா, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरे साथ प्यार से कैसे पेश आना है, எப்படி வாழ வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியாதபடி, इस दुनिया में कैसे जिंदगी जीना है ये भी तू नहीं जानता, உலகத்தில் உள்ள ஆசீர்வாதங்களை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள தெரியாது. दुनियावी आशीष को कैसे प्राप्त करें ये भी नहीं जानता है। நான் உனக்கு எனக்குள்ள அன்பின் உணர்வான பரிசுத்த ஆவியை நான் கொடுப்பேன். मेरी तरफ से मेरी प्यार की वजह से मैं मेरा पाखरू तुम्हें बेच दूंगा। பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு और ये पाखरू जब तेरे अंदर बस जाएगा உனக்கு எல்லாத்தையும் கற்றுக் वो सब कुछ सारा सत्य तुझे बताएगा। हालेलुया। 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 பாருங்க, எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஒரு கப்பல் இருக்காங்க. मैं एक कपल को जानता हूँ, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. यहाँ फ्रांस में है। அவர் வேலையிலேருந்து வீட்டுக்கு வரும்போது जब நடந்த சம்பவம். जब वो पति घर वापस लौट रहे हैं, ये जो हुआ है, ஆபீஸ்ல இருந்து அவன் சயின்டிஸ்டா இருக்கான். அவன் கார்ல வீட்டுக்கு வரும்போது वो जब काम से वापस लौट रहा था पति, அவன் சொல்லுவான், அவன் நினைப்பானா, என் மனைவி இந்த புடவை கட்டிக்கிட்டு பூ வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். वो सोचते हुए आएगा कि आज मेरी वाइफ ये पहनकर और फूल भी लेकर बैठेंगी मेरे लिए, நினைச்சு கொண்டு போவானா. सोचकर घर लौटेगा। ஹalleluya. ஆனால் கதவை திறக்கும்போது அதே கலர், அத என்ன நினைச்சோ அந்த புடவை கட்டிட்டு பூ. और जब घर आकर दरवाजा खोल के देखे तो उसी रूप में वो पेश आती है। அதோட ஒரு பெரிய காரியம், இவன் கதவு கிட்ட போய் நிக்கும்போது கதவை திறந்துப்பான். और जब कभी भी घर पहुंच जाता है तब खटखटाने से पहले वो खोल देती है दरवाजा। ஹalleluya. हालेलुया। உண்மை நடந்துட்டாம என் முன்னால ये இருக்க. हकीकत है, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ। அதே போல என் மனைவிக்கு என்ன வேண்டும் அவள் நினைப்பால், எனக்கு நான் கடைக்கு போவேன், அவள் நினைக்கிற இதை எடுத்துக்கொண்டு போவோம்னு சொல்லும்போது நான் நினைத்தே நீங்க வாங்கி கொண்டு வருவீங்க. वैसे ही जब वो कुछ खरीदने के लिए दुकान में जाता है तो कोई चीज़ ऐसा लेके जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद अपनी पत्नी को इस चीज़ की ज़रूरत हो, और घर वापस जब लौटता है तो वो कहती है मैंने सोचा आप लेके आए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் அவர்கள். கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள். जो यीशु को नहीं पहचानते, கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களுக்கு உறவு அப்படி இருக்கும் என்றால், अगर जो यीशु को नहीं जानते, ये कपल जो है यीशु मसीह में नहीं है, अगर उनके लिए रिश्ता ऐसा है அந்த உறவுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? तो हमारा रिश्ता कैसा होना है? ஆமென். आमीन। அப்ப இன்றிலிருந்து இயேசுவை நீங்கள் எப்படி பார்க்க போகிறீர்கள்? आज के बाद आप यीशु को किस नज़र से देखोगे? இயேசுவை கடவுளாக பார்க்க போறீங்களா, यीशु को एक परमेश्वर के रूप में देखोगे, இல்லது ஒரு பெரிய என் தேவைகளை சந்திக்கிறவராக பார்க்க போறீங்களா, या सिर्फ मेरी ज़रूरत को पूरे करने वाला एक सरदार देखोगे, என்னுடைய மனவாளனாக பார்க்க போறீங்களா? या आपका दुल्हा मानोगे? உங்களுக்கு தான் கேட்கிறேன். आपसे सवाल रखा गया है, किस रूप में देखोगे यीशु को? मनवालन।
இந்த இங்க நீங்க தைரியமா சொல்ல ஏன்னா இது பரலோகத்துடையது இங்க यहाँ आप हक जताकर कह सकते हैं यहाँ पे कोई डिवोर्स नहीं होगी। बुलंद आवाज में आप बोल सकते हो, यहाँ पे किसी की भी तलाक नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि हम कह सकते हैं मेरा दुल्हा पाक है। हालेलुया। ओके, कितने लोग चाहते हैं कि आज हकीकत में यीशु के साथ आपकी शादी हो? आज तक सिर्फ प्यार था। हाँ, जैसे जब आप लव में हो, जिस रिश्ते में हो, तो अगर कुछ मिलता है तो नहीं मिलता है, झगड़ा, ऐसे झगड़ते झगड़ते जस्ट ऐसा रिश्ता था आज तक। हालेलुया। और कभी कभी यीशु भी गुस्सा करता है हमारे साथ। आज हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम आज शादी करेंगे। कितने लोग चाहते हैं शादी करना चाहते हैं? इस रिश्ते को पूरा कौन सा चीज है जो करता है? रजिस्ट्रेशन में जाके जब हम मेरी में सिग्नेचर करते हैं, ऐसा। हालेलुया। जैसे हम अंगूठी पहनाते हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अंगूठी और ये सिग्नेचर? अगर हाथ नहीं उठाओगे तो शादी नहीं करवाएंगे। दूत मौजूद है यहाँ पर। हालेलुया। तो आपका जो शादी है उसको रजिस्टर करने वाला पाखरू मौजूद है। अंगूठी भी देगा आपको, और आप आज के बाद यीशु का दुल्हन बन जाओगे। हालेलुया। जो भी यीशु का है सब कुछ हमारा भी है। आज के बाद स्वर्ग के सारे आशीष हमारा भी हक बनता है। हालेलुया। आप मान ले आप सबसे गरीब बंदा हो, पर आपकी शादी अंबानी के घर पर हो रही है। अंबानी का भी अंबानी है वो। हालेलुया। तो हमारी इतनी बड़ी शादी होने वाली है। हालेलुया। आप ऐसा शौक मत करो। हालेलुया। एक बात है, पर हमारा दुल्हा चाहता है, दिल में जो भी चाहत है सब निकाल के फेंक दो। हालेलुया। क्योंकि अगर अंबानी के घर में रहना है तो आपके टूटे फूटे सूटकेस और छोटे मोटे कपड़ों के साथ तो नहीं जा सकते ना। क्या आप वो पुराने कपड़े लेके आओगे अंबानी के घर पर? सब कुछ फेंक देंगे, अच्छा कपड़े पहनकर चले जाएंगे। वैसे भी हर पुरानी चीज को निकाल के फेंक देंगे, एक छोटा सा बच्चा समान मानकर ऐसा साफ होकर हम जाएंगे यीशु के साथ। हालेलुया। कितने लोग शादी में शामिल होना चाहते हैं? एक कंडीशन है, सब कुछ निकाल के फेंक दो, फिर हाथ उठाओ। मैं यीशु राजा मेरा दूल्हा का दुल्हन बनने जा रही हूँ। मैं हाँ, मैं स्वर्ग में रानी बन के जाऊंगी। हालेलुया। आप सब ऐसे क्यों? या ये टीवी नहीं है, हकीकत है। आप ऐसे देख रहे हो कि हम कुछ अजीब चीज बोल रहे हैं यहाँ पर। आज तक मैं सालोमन के बारे में बात कर चुका हूँ, दाऊद के बारे में बात कर चुका हूँ। पर हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो हमारा दुल्हा है, हमें ले जाने के लिए आ रहा है। वो कहता है तू तैयार है, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। तो आप उसके साथ स्वर्ग में रहोगे। वो जिंदा खुदा है, वो वफादार है,
और वो मेरा दुल्हा है। हालेलुया। உண்மையாக அவரை விரும்புகிறவர்கள் எழுந்திருக்கலாம். अगर वाकई में आप चाहते हो तो आप खड़े हो जाएं। உண்மையாக அவரை என் மணவாளனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். अगर आप मानना चाहते हो वाकई में कि यीशु मेरा दुल्हा है। நாம் ஞானஸ்நானம் பண்ணும்போது எதேதோ கேட்டுக்கொண்டோம். जब बपतिस्मा लिया था तो हमने पता नहीं कौन कौन से वायदा किया होगा, இன்று மறுபடியும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள போகிறோம். पर आज हम दोबारा उस वायदा को हम निभाएंगे இயேசுவுடையது. कि मेरा जीवन यीशु का है। என் ஜீவன் எப்போதும் இயேசுவுடையது. मैं सदा के लिए यीशु का बनना चाहता हूँ। அவருக்கு பிரியமானதை நான் செய்ய மாட்டேன். यीशु जो भी नहीं चाहता है नहीं करूंगा, அவர் எப்போதும் என்னை நினைக்கும்படியாக और मैं हर वक्त यीशु के बारे में நான் सोचूंगा, அவருக்கு விருப்பமானதை செய்ய. और मैं हर वक्त यीशु जो चाहता है वो करने का यत्न करूंगा। அப்படி நினைக்கும்போது என் தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்க அவர் வல்லவராய் और जब मैं इस सोच के साथ आगे बढ़ूंगा तो मेरे हर जरूरत को खुद से वो पूरा करेगा। हालेलुया। என் தேவைகளை சந்திக்க வல்லவராய் तो मेरे हर जरूरत को वो पूरा कर सकता है। அவர் நமக்கு என்ன தேவை, பூமிக்குரிய என்ன தேவை, அவர் இப்போது சந்திக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். दुनिया में जो भी चीज की जरूरत है वो करने के लिए वो कर सकता है। हालेलुया। அவர் கணவன் மனைவி ஏற்படுத்தினார் அவர். पति पत्नी को भी यीशु ने बनाया है, அவர் குழந்தையை ஏற்படுத்தினார். बच्चों को भी यीशु ने दिया है। அந்த சந்தோஷத்தை நமக்கு இந்த பூமியில் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் காரியத்தை ஏற்படுத்தினார். दुनिया में खुश रहने के लिए खुदा ने परिवार दी है, அவர் என் கணவனுக்கு இயேசுவுக்கு நான் அன்பு காட்டும்போது और जब हम हमारा दुल्हा यीशु के साथ தேவைகளை சந்திக்க அவர் வல்லவராய், आगे बढ़ेंगे तो हमारा जरूरत को पूरा करेगा, பிரச்சனைகளை சந்திக்க வல்லவராய். हमारे हर तकलीफ को दूर हटाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகவே அந்த உறவு, तो उस रिश्ता को, அவரோட பேசுகிற உறவு, उसके साथ बात करने के रिश्ता को, பந்தம், அந்த மார்னிங் அந்த उस एकता को இப்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும். अभी पाकरू के वसीला से हम सबको मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம அப்படியே ஒரு நிமிடம் हम कुछ टाइम निकाल के, இயேசு என்னை நான் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். यीशु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। இதுவரை உம்மை நான் தெய்வமாக மற்ற காரியங்களாக பார்த்தேன். आज तक मैंने तुझे एक परमेश्वर के रूप पर, खुदा के रूप पर मैंने देखा है, ஆனால் தேவன் சொல்கிற காரியம், पर यीशु कहता है உலகம் தோற்றத்தின் முன்பாகவே என்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறீர். सारी दुनिया को रचने से पहले ही खुदा ने हम सबको नाम से पुकारा है। உள்ளங்கையில் நீர் வளைந்து வைத்திருக்கிறீர். उसने अपने हाथों में हमें रखा हुआ है, இரவும் பகலுமாக என்னை கண்ணோக்கி பார்த்து रात दिन उसका नजर हम पर है। ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என்னோடு உறவாய் கொண்டிருக்கிறீர். हर पल हर वक्त यीशु चाहता है कि हमारा रिश्ता मजबूत रहे। என் மனைவி என்னோடு பேச மாட்டாளா என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர். यीशु के दिल के अंदर एक तड़प है कि मेरी दुल्हन मेरे साथ बात करे। அன்பை நான் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தேன். इस प्यार को समझने की मौका दे। இப்போது நான் புரிந்து கொண்டேன். अभी मैं समझ रहा हूँ यीशु, என் நிரப்பம் तू मुझे भर, உமது அன்பினால் நிரப்பம், तेरे प्यार से मुझे भर दे, உமது இரக்கத்தினால் நிரப்பம். तेरी कृपा से मुझे भर दे। நான் போய் கேட்கிறவன் அனுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னேன். तूने वायदा किया था मैं जाकर मैं तुझे भेज दूंगा पाकरू। அந்த இயேசுவை என்ற உணர்வை உணரும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டேன். उस एहसास को दिलाने के लिए तूने पाकरू को भेजने का वायदा दिया था। இயேசுவோடு நான் வாழ வேண்டும். यीशु के साथ जिंदगी जीना है, உணர்வோடு வாழ வேண்டும். यीशु के एहसास होना जरूरी है। எப்போதும் மகிமையான இயேசு ஐஸ்வர்யம் இயேசு मेरे दिल में यीशु की महिमा, यीशु की सोच हर पल रहे। அந்த உறவு எனக்கு எப்போதும் வேண்டும். ये रिश्ता मुझे चाहिए यीशु। இந்த பூமிக்குரியவர்கள அல்ல, ये दुनिया के लिए नहीं है यीशु, உமக்குரியவர்களாக எனக்கு सिर्फ तेरे लिए जो चाहिए वो मैं करूं। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் இப்போது விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கும்போது अभी हम विश्वास के साथ जब आप दुआ करेंगे, यीशु एक नया मसा से भर देगा। அபிஷேகம் என்ன மூடும். उसका रूह का मसा जब हमारे ऊपर आएगा, எல்லா பலவீனம் இயேசு நாமத்தில். हमारी हर कमजोरी मिट जाएगी। சரீரத்தில் பலவீனம் இயேசு நாமத்தில். जो भी आपकी कमजोरी है मिट जाएंगे। கணவனுக்குள்ள இருக்கிற பலவீனங்கள் मेरे पति के अंदर जो कमजोरी है मिट जाएंगे, मेरे पत्नी के अंदर कमजोरी मिट जाएगी, मेरे बच्चों के अंदर कमजोरी मिट जाएंगी। मेरा पूरा परिवार यीशु का दुल्हन बनेगी, क्योंकि मेरा दुल्हन मेरे साथ है, क्योंकि जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने सिर्फ एक ही बात कहा है, எல்லா கவலைகளையும் तेरे दिल में हर बोझ को तू हल्का कर दे, கவலைகளெல்லாம் எடுத்து போடு. तेरे हर सोच को मिटा दे। இன்றைய உன்னை குறித்து நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். आज के बारे में मत सोच, உன்னை குறித்து அடுத்த வருடத்தை குறித்து நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். तेरे आने वाला कल आने वाले साल के बारे में मैं सोचता हूँ। வருடத்தில் நீ எப்படி இருக்க வேண்டும், अगले साल में तुझे क्या क्या करना है मैं जानता हूँ। சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று मैं चाहता हूँ कि तू खुश रहे। तू मेरे साथ आ, मेरे पास आ, அன்போடு பார்க்கிறார். प्यार के साथ मेरे पास पेश आ, நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். और तुझ मुझसे प्यार कर। அவர் ஏக்கமாக நம்மை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
आज तक यीशु इंतजार में था कि हम उसके साथ प्यार से पेश आए। यीशु चाहता है कि हम सब उससे प्यार करें, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा दुल्हन मेरे साथ प्यार से पेश आए। और कहना है यीशु को कि मैं पूरी तरीके से सौंप रहा हूं, मैं अपने आप को सौंपता हूं। अगर तू खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगी। मुझे परिपूर्णता के साथ आशीष चाहिए, मुझे पूरी तरीके से छुटकारा चाहिए। मैं अपने आप को सौंपता हूं, मैं अपने आप को सौंपता हूं। हमें आशीष मिले, हमें खुश रहना है अभी और इसी वक्त। इसको हम पालें, मांग कर देखें। खुदा करने के लिए हाजिर है, क्योंकि हमारे आंख शायद बंद हो। मांग ले यीशु से कि मेरे आंखों को खोल दे, मेरे कानों को खोल दे। कब आएगा तू मेरे पास? और मेरे अपने आप को सौंपता हूं अभी और इसी वक्त। यीशु तू मेरे दिल में आ, तू मेरे दिल में आ, तू मेरे दिल में आ। मैं अपने आप को सौंपता हूं, मैं अपने आप को सौंपती हूं। और तेरे रूह से मुझे भर, तेरे पाक रूह से मुझे भर, तेरे पाक रूह से मुझे भर। मेरे दिल को तू साफ कर, मेरे दिल को तू साफ कर, मेरे दिल को तू साफ कर। पूरी तरीके से भर खुदाया, पूरी तरीके से भर दे अब्बा। सर से लेकर पांव तक तेरे लहू से, तेरे लहू से मुझे मोल दे। मुझे और एक बार, और एक बार, और एक बार खुदाया मेरे दिल को तू भर दे, पाक रूह से भर दे। मुंह खोल के पूछे, मुंह खोल के मांगे, मुंह खोल के मांगे, बुलंद आवाज में मांगे। हर कमजोरी को आप निकाल दे। हर कमजोरी को तो निकाल दे खुदाया, हर कमजोरी को तो निकाल दे। मेरे दिल को तू भर दे, मेरे दिल को तू भर दे पूरी तरीके से खुदाया। एक नया रूह का मस्सा, एक नया रूह का ताकत से मुझे भर दे, साफ कर दे खुदाया। मेरे दिल और दिमाग को तू चला। और एक बार तेरे रूह को हमारे ऊपर उंडेल दे अब्बा, उंडेल दे खुदाया। और एक बार एक रूह की ताकत से अब्बा। यस लॉर्ड। और यीशु तेरे रूप में हम रचाए गए, तेरे रूप में हम रचाए गए। ओ यस खुदाया, हम तेरे हाथों को नहीं, तेरे चेहरे को देखने आए हैं। तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को देखने आए हैं। ओ यीशु, यस लॉर्ड, ओ यीशु तू मेरा दुल्हा है। यस जीसस। ओ यस जीसस, हालेलुया। तेरे हाथों को नहीं, तेरे चेहरे को देखने आए हैं। तू हमारा दुल्हा है। उंडेल दे खुदाया। और एक बार उंडेल दे खुदाया। आज हमारे दिल को तू भर दे, भरपूर होकर हम वापस जाए अब्बा। यस जीसस, तू भर दे अब्बा। यस लॉर्ड, यस जीसस। ओ हालेलुया, यस यस खुदाया। और एक बार अब्बा, और एक बार तेरी रूह की ताकत से, तेरी पाक रूह की वसीला से तू मुझे और एक बार साफ कर। मेरे दिल को तू साफ कर खुदाया, और मेरे दिल में तू बस जा। यस जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ஒரு சின்ன ஒரு காரியம், एक छोटी सी बात है। நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தான்। हम सबके साथ ये एक दफा तो हुआ है। முதல் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெண்ணை நான் பார்க்கும்போது, पहली दफा जब आपकी मुलाकात एक औरत के साथ हुई, திருமணத்தை குறித்து, शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை குறித்து பார்க்கும்போது, वैसे ही जब एक औरत की मुलाकात होती है अपने पति के साथ, அந்த பெண் எப்படி இருப்பாளோ ஏக்கம் ஒரு சந்தோஷம் तो இருக்கும்। मुलाकात से पहले हमारे दिल में तो एक सोच होती है, पता नहीं कैसी होगी या पता नहीं कैसा होगा। எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும்। तो मुलाकात होने के बाद इतना खुश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। இயேசு மணவாளனை இப்போது அத பார்க்கிற எண்ணம் நமக்குள் வரும்। वही खुशी यीशु को लेकर अभी हमारे अंदर होना मौजूद है। हालेलुया। இயேசு எனக்குள் வர வேண்டும்। यीशु मेरे अंदर आए, அந்த உணர்வு எனக்குள் வர வேண்டும்। वो एहसास हमारे अंदर हो। நீங்கள் இயேசுவை அப்படி பார்ப்பீர்கள், பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இயேசுவுடைய உள்ள வல்லமையின் உணர்வு நமக்கு। अगर आप यीशु को उस एहसास के साथ आप देखोगे तो पाक रूह आपके दिल में आकर बात करेगा, வல்லமையின் அபிஷேகம் எனக்குள் வரும்। क्योंकि उस रूह का मस्सा आपके ऊपर उंडेल देगा। அவர் எனக்குள் வாசம் செய்கிற
உணர்வை உணர முடியும். और आपको पता चलेगा कि यीशु आपके अंदर बसा हुआ है. Hallelujah. हालेलुया. வாசியுங்கள். இப்போது ஆவியானவர் உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிற வார்த்தை இது. एक कलाम है जिसको हम पढ़ेंगे. உன்னத பாட்டு. உன்னத பாட்டு. இது வரைக்கும் யாரும் எடுத்து பாடல. विलाप गीत, उसको कहते हैं विलाप गीत. विलाप गीत, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन. Solomon जी. songs. विलाप गीत. Second chapter. दूसरा चैप्टर 8 and 9. 8 और 9. 8, 9, 10. தேவன் இந்த நேரத்தில் நம்மை நேசிக்கிற உறவை நம்ம வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். विलाप गीत 2 उसका 8, 9 और 10. क्योंकि यीशु हमसे प्यार करता है, ये कलाम हम सबके लिए है. யாரெல்லாம் இயேசு எனக்கு மணவாளனாக வர வேண்டும். जितने भी अपने मुंह खोलकर इकरार कर चुके हैं कि यीशु हमारा दुल्हा है, இதோட கேட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் जितनों ने भी मांगा है, இந்த வசனத்தை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வாசிங்க. ये कलाम आप हर रोज पढ़ें, அவர் நமக்கு லெட்டரை போல எழுதியிருக்கிற அந்த வார்த்தை இது. क्योंकि एक खत के समान यीशु ने हमें ये दी है. வாசித்து முடிக்கும்போது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் உங்கள் மேல் வந்தது. इस 3 वचन को पढ़ने के अंत में हम देखेंगे कि पाकरू वाकई में उतर आएगा. हालेलुया. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும்போது வல்லமையான जब जिंदा खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो जिंदा खुदा खुद उतर आता है. हालेलुया. ஒரு வாசிப்போம். पढ़ें. और 10. यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की शहर बना तोड़ डालने की ठान ली थी. उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नष्ट करने से नहीं खींचा. नहीं, एक सेकंड, ये भी नहीं. सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन उसको क्या बोलते हैं? உன்னத பாட்டு. नीति वचन के बाद Breaking news. श्रेष्ठ गीत. सॉरी मेरी गलती है. श्रेष्ठ गीत 2 उसका 8, 9, 10 और पुलम्बल पोटेटर. जी. मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है. आमेन. यस, ये है. Amen. இது ஒரு இயேசுடைய லவ் லெட்டர். ये यीशु का लव लेटर है हमारे लिए. மனைவிக்கு எழுதிய கடிதம். अपने पत्नी के लिए लिखा गया है. சந்தோஷத்தோட வாசிப்போம். खुश होकर पढ़ें. வாசிக்கும்போது ஆவியானவர் மத்தியில செய்வார். हालेलुया. मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है. देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है. मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हिरण के समान है. देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और जंजरी में से देख रहा है. मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर आ. हालेलुया. हालेलुया. Amen. हालेलुया. அவர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். खुदा बात कर रहा है आप हमारे साथ. அதற்கு சம்பூர்ணமான இயேசு நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். हमारा परिपूर्ण यीशु हमारे बीच में मौजूद है. சம்பூர்ணமான இயேசு நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். परिपूर्ण होकर यीशु हमारे बीच में है. அவருடைய வல்லமை நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது. उसकी ताकत भी हमारे बीच में मौजूद है. இதயத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் अगर दिल में आप इस बात को इकरार करें, நாம் அவருடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்காக ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். हर जरूरत को पूरा करेगा. आप ये बात मान लें. ஹalleluya. हालेलुया. आंखें को இயேசுவின் நன்றி என்னோட வந்தது. आंखें खोलकर शुक्रिया अदा करेंगे कि यीशु तू उतर आया है. मेरे दिल को पूरी तरीके से भरने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ. पूरे एहसास के साथ जैसे पति पत्नी के साथ बात करता है, जैसा पत्नी पति के साथ बात करती है, उस एहसास के साथ यीशु का शुक्रिया अदा करेंगे. यीशु का शुक्रिया अदा करेंगे. ओ यीशु, एक बार मैंने मांगा है तो तू उतर आया खुदाया. ओ तेरा शुक्र अदा करते हैं अब्बा. ओ यस लॉर्ड, तेरे पाखरू के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. ओ यस, तेरे एक बार पुकारने से अब्बा तू पूरा करता है. मेरे हर जरूरतों को तू पूरा करता है अब्बा. ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पाखरू, थैंक यू लॉर्ड. ओ तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. எவ்வளவு பேர் சந்தோஷம். कितने लोग खुश हैं? हालेलुया. शादी Amen. कल्याण वाले कल கல்யாண வாழ்த்துக்கள். शादी मुबारक हो. வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள அந்த வரதட்சணை எல்லாம் வந்து சேர்ந்துடும். घर पहुंचने से पहले दहेज पहुंच जाएगी. Amen. பரலோகத்தில் வரதட்சணை. स्वर्ग से आएगा आपके दहेज. Amen. हालेलुया. உங்களால் முடியாததை தேவன் முடிக்க जो போகிறார். आपके लिए असंभव है यीशु करके दिखाएगा. हालेलुया. पूरा करके दिखाएगा आपको, நம்முடைய மனவனை முடிக்க போகிறார். क्योंकि हमारा दुल्हा करेगा खुद. நாம் ஏமாற்றுவோம் ஆனால் என் கணவர் ஏமாற்ற மாட்டார். हम धोखा दे सकते हैं बट हमारा दूल्हा ऐसा नहीं है. ஹalleluya. हालेलुया. Amen. आमेन. சந்தோஷத்தோட நாம் திருவிழா காணலாம். खुशी के साथ हम प्रभु भोजन में हिस्सा लें. கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். शादी हो गई है तो आकर आप प्रभु भोजन में शामिल हो जाओ.
ಸಂತೋಷದೋಡೆ खुशी के साथ ஹalleluya ಸಂತೋಷದೋಡೆ நம்ம மனவாட்டிகளாக இருக்கிறோம் क्योंकि हमारी शादी हो गई तो खुशी के साथ आकर इसमें हिस्सा लें ஹalleluya हालेलुया மனவாட்டியோட ஃப்ரெண்ட் இல்ல நம்ம हम दुल्हन की फ्रेंड नहीं है हम दुल्हन है மனவாட்டி நாம தான் हम खुद दुल्हन है ஆமென் हालेलुया சந்தோஷமா खुश हो ஹalleluya பேர் வந்து கலந்து போ हालेलुया हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया 11 बाब 23 से लेकर 31 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आमीन। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरे लिए है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो। इसी रीति से उसने प्यारी की पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नहीं वचन है, जब कभी पियो तो मेरा स्मरण के लिए ये क्या करो। ये तो सच है खुदा है, जीवन है तू रास्ता है तू तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं ना ही मैं त्यागूंगा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं
Our beloved Father, 2024, you made a New Testament. Today we remember Father Rampa. Father, today onwards, you are the man, we are the husband, you are my husband, we are your wife. We are giving our love to you, to my husband, because you love very much to us. You submitted everything to him, and you fulfill with your love. We pray in the name of Jesus. Amen.